ओके, आई होप दैट आपने लास्ट वाला टॉपिक कर लिया होगा. देन टुडे आई विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक. होप दैट आपने न्यूमेरिकल्स कर लिए होंगे. सो टुडे न्यू टॉपिक दैट इज conversion. How we can convert one system into another system. एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल दैट इज, अगर इफ यू विल राइट हियर 1 kg दैट इज 1 किलोग्राम दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम. ये आपको पता है. देखिए जरा, this 1 kg, the value of 1 kg is equal to 1000 gram. It means that this kg is SI unit and this gram is CGS unit. But see, 1 kg is equal to this one. Both are equal. Listen, this and this both are equal. Both are equal. So today we will learn how to convert kg, how to convert one system into another system. So this is an example here. This one is a numerical value. This is numerical value. Okay, and this is unit, and which unit? SI unit. Similarly, this is again see same numerical value, and this side, this gram is a unit. So here, how to write this one? For numerical value, I will write here n, correct? N, and this is what is this? This is a unit. For unit, I will write here u. Okay, so n for numerical value, u stands for unit. So one system is SI, second system is CGS. So how we can convert one system into another system? See here, what is the numerical value here? 1. Let it is n1. Okay, and kg, what is kg? What I said, kg is that is SI unit. So you have to write in unit, that is let it is u1. Because see here, numerical value is different. Here is 1, his numerical value is 1000. Numerical value is different, that's why I have written here n1. See again here, this CGS, this is a CGS system and this is SI system. So no, that is the units are also different, but see both are equal. So this is also, listen here, the numerical value is n2. This is an example beta, this is example. So n2 and this is a u2. Okay, n1. So from here, numerical value into unit is equal to numerical value of the second system into unit of that. So see here how to write this one. Suppose that this side I have taken SI system and this side is CGS. So how we can convert CGS into SI? Suppose that we want to find the value of n2. So n2 is equal to n1 into u1 by u2. This one. n2 equal to n1 into u1 by u2. Now listen one thing, in units here only we have to consider which terms already discussed: m, l, t, mass, length and time. So in one system u1, this side is I have taken m1, mass, length and time t1. Similarly, in the second system u2, mass is m2, length is l2 and time is t2. What, listen one thing, I don't know the power. What are the powers? So consider power a, b, c. Power remain the same, a, b and c. So n2, put all these value beta, इनकी value put करिए जरा. n1 into u1, what the value of u1? m1 by m2 raised power a, you can write in this way. Next one is l, length l1 by l2 raised power b. Third, t1 by t2 raised power c.
I hope that up to here clear. Now listen one thing. This M1 that is U1 and U1 is a SI system. So N2 equal to N1 into this here mass SI system mass is taken in kg. So 1 kg upon mass in CGS system it is taken in grams. So 1 kg upon 1 gram raised power A. Okay, length in SI system, length is in meter. So 1 meter upon length that is in CGS system. So 1 centimeter raised power B time that is 1 second in SI. In CGS this is also second. So 1 second upon 1 second raised power C. So this get cancelled. So what left? So N2 equal to N1 into, we cannot cancel these because this is in kg, this is in grams. So we have to convert kg into grams. So that is equal to, yes, 1000 grams upon 1 gram raised power A. 1 meter that is 100 centimeter upon 1 centimeter raised power V. Now get cancel this one, centimeter and centimeter. So this N2 new system in CGS is equal to N1. What is N1? N1 is a numerical value. N1 is a numerical value into, that is 1000 raised power A into here, this is raised power V. So this is the method. With the help of this method we can convert SI system into CGS or CGS system into SI system. Any doubt? Any doubt? कोई डाउट है किसी को? हाँ जी, हाँ हाँ बेटा देखो, ये ग्राम है तो कट जाएंगे ना, ग्राम को ग्राम से डिवाइड किया तो कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, अब नया सिस्टम बन गया, दिस इज, ये सीजीएस में कन्वर्ट हो गया. So please write on this one. So you can convert this one system into another system. इसका एक एग्जांपल मैं आगे करूंगा, फिर आपको और भी इजी हो जाएगा बेटा. अभी तो फिलहाल दैट इज यू डोंट नो दैट इज व्हाट इज ए बी सी, राइट. तो जब आप आगे करेंगे इसका एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर हम करेंगे, एग्जांपल करेंगे, सो इजीली आप लोग कर सकते हो इसको. सो प्लीज राइट ऑन conversion of one system, heading conversion of one system into another system. So done or doing? सबने कर लिया? ओके.
द नेक्स्ट वन इज ओके द एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल मैं आपको करके देता हूं, उसके बाद सेकेंड यू कैन डू योर सेल्फ. ओके, यू नो that is SI unit of force. SI unit of force is Newton and CGS unit of force is dyne. Okay, now the question is that convert 1 Newton into dyne. So this is a conversion of one system into another system. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि ये यूनिट किस चीज का है. दिस इज फोर्स. दोनों जो यूनिट है वो फोर्स के हैं, एक एसआई में एक सीजीएस में. तो जैसे फोर्स की बात करी तो हमने यहाँ पे फोर्स लिख लिया. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है. दैट इज एम एल टी माइनस टू 1 1. ओके, सिमिलरली वही प्रोसेस आपने फिर स्टार्ट कर दिया जो पीछे आपने किया. दैट इज N1 U1 इक्वल टू N2 U2. ओके, आपने क्या कैलकुलेट करना है. N2. सो दिस N2 इक्वल टू N1 U1 बाई U2. यस. ओके, अब N2 देखो क्या बोल रहा है. कन्वर्ट 1 न्यूटन. व्हाट इज दिस. दिस 1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी. This is N1. Here given N1 is 1. So here 1. And again U1. So U1, what are the value of U1? M1, L1, T1. U2, M2, L2, T2. But see here, what are the powers? See here, M power 1, 1. L power 1. 1 t raised power -2. सो इनकी वैल्यू पुट करें यहाँ पे. U1 इज M1 बाई M2 रेज पावर 1. सिमिलरली L1 बाई L2 रेज पावर 1. सिमिलरली T1 बाई T2 रेज पावर -2. So N2 इक्वल टू 1 इंटू M that is जो ऊपर है that is बेटा SI सिस्टम है. that is SI सिस्टम. So SI सिस्टम में मास किसमें होता है 1 kg 1 किलोग्राम अपॉन मास इन CGS सिस्टम that is 1 ग्राम रेज पावर 1. लेंथ इन मीटर्स 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर रेज पावर 1. टाइम that is 1 second upon 1 second raised power -2 get cancelled. So N2 equal to 1 multiply when you multiply 1 by this one remain the same. So convert this 1 kg. 1 kg is 1000 gram upon 1 gram raised power 1. And this is 1 meter that is 100 centimeter upon 1 centimeter raised power 1. Centimeter gram get cancelled. So N2 here see here 1 2 3 power 1. So you can write 10 raised power 3. Okay, here is a multiplication. Here raised power again 1. Here 10 raised power 2. So 10 raised power 5. Yes, dyne. This is new system. So here is a N2 value is this one. So last write on. So 1 Newton equal to 10 raised power 5 dyne. This is the conversion of SI system that is Newton into a dyne. So 1 Newton equal to 10 raised power 5 dyne. Any doubt? हाँ बेटा, यहाँ पे देखो गिवन है. यहाँ पे अगर इन प्लेस सीयर क्वेश्चन में होता कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू डाइन्स. सो दिस एन दिस वन, ये जो एन है यहाँ पे N1 ये कितना होता 5 होता.
यहाँ पे हमने 1 लिया बेटा, इसकी जगह अगर 1000 होता तो हमने 1000, ये न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा, ये गिवन है ऑलरेडी, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, सो न्यूमेरिकल वैल्यू n1 इज 1। अगर यहाँ पे होता कन्वर्ट 1000 न्यूटन इनटू डाइन, सो n1 इक्वल टू 1000 बेटा। So please write out this one. Done? Okay, okay, okay. No problem. बेटा इससे पीछे वाला सेम किया आपने, उसमें भी सेम था। तो यहाँ पे क्या किया, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ओके, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो न्यूटन है किसका यूनिट है, दिस इज यूनिट ऑफ फोर्स। सो द फोर्स का द डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स F इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, raised power here m raised power 1 l1 t minus 2, and the numerical value of n1 is given here 1 newton. सो प्रीवियस जो केस किया हमने उसी की तरह यहाँ पे दिस इज n1 u1 इक्वल टू n2 u2। यहाँ पे n1 कितना है 1 न्यूटन, हमने क्या निकालना है दैट इज n2। सो n2 कैसे निकालेंगे, n2 इक्वल टू सेम डिटो कॉपी हमने ऑलरेडी किया, u1 u2 की वैल्यू जो पहले लिखी थी वैसे ही लिखी है हमने। तो ये बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, यहाँ तक सेम स्टेप्स हैं, यहाँ तक सेम स्टेप्स हैं, हाँ बस पावर का डिफरेंस है। वहां पे पीछे वाले में क्या लिखा था हमने ए बी सी, और यहाँ पे कितनी है पावर, ये देखो ये पावर, ये क्या है, ये पावर 1 1 माइनस 2। सो बस ये वैल्यू पुट करी, 1 केजी 1000 ग्राम, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ग्राम ने ग्राम को कैंसल आउट कर दिया। सो n2 कितना आ गया, 10 रेज़ पावर 5 डायन आ गया। डिट्टो कॉपी है पीछे वाली बिल्कुल, वहां पे पावर एबीसी थी, यहाँ पे पावर 1 1 है। हाँ जी, डन। ओके, नाउ यू कैन डू योरसेल्फ और मुझे आंसर बताना कितना आ रहा है। कन्वर्ट 1 joule into arc. Now this joule is, or joule is a unit of work. This is a unit of work. Okay, both this is also a unit of work. This is SI system and this is CGS system. So work, dimension formula of work is ML2 T minus 2. Now do yourself. CGS is erg beta, ERG, erg. SI is joule and CGS is erg.
तनिष्क, तनिष्क डन। नो बेटा, जिसकी पावर कोई नहीं होती उसकी पावर कितनी होती है? 1 होती है ना। हाँ, जिसकी पावर कोई नहीं है, जिसका मालिक कोई नहीं, ऊपर वाला मालिक सबका होता है ना। हाँ। हाँ, तो अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, कोई भी टर्म लिख रहे हैं, एक्स लिखा हमने, इट मीन दैट ये एक्स अकेला नहीं है, इसकी पावर कितनी है? 1 है। बिल्कुल सही है, करेक्ट, गुड सलूजा, गुड। सो 1 जूल इक्वल टू 10 रेज पावर 7 अर्ग। आई थिंक ये सबका हो गया होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, वो पीछे वाला ये बेटा आप तो डायरेक्ट कर सकते हो। आपको देखो यहाँ पे एल रेज पावर 2 आ गया, यहाँ कितना आएगा? ये तो 1000 आएगा आपका। 1000 इनटू यहाँ पे कितना आता है? 100। 100 रेज पावर कितनी है? 2, दैट इज 2। तो कितना हो गया? 10 रेज पावर 7 अर्ग हो गया, दिस वन। सो बेटा आज क्या करना है आप लोगों ने? ऐसी प्रैक्टिस करनी है, हाउ यू कैन कन्वर्ट। मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरह से कन्वर्ट करना है, इस चीज को नोट कर लेना है और प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चन की कि हाउ यू कैन कन्वर्ट। वैसे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आता ना, इसमें आता है, लेकिन आगे जाके दैट इज द कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट आएगी, तो ये रिजल्ट आपको याद चाहिए। तो आइए आगे नेक्स्ट न्यू टॉपिक, थोड़ा सा दैट इज ऑल्सो ए कन्वर्जन के ऊपर है, थोड़ा देखना है जरा। ओके, मैं बात कर रहा हूं कि एक बॉडी जो है सर्कल में मूव कर रही है बेटा। बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल, या एक आपके पास कंप्लीट सर्कल है। ओके, अगर मैं इस तरह से इसको कंप्लीट करता हूं इस तरह से, तो ये अपने पास सेंटर पॉइंट आ गया। ओके, अब देखिए जरा, यहां पे मैं नेम दे रहा हूं ए बी सी डी। तो आपने एक चीज नोट करनी है कि जब भी हम एंगल की बात करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, सुनना है ध्यान से, जब भी हम एंगल की बात करते हैं और कोई कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और जो एंटी क्लॉकवाइज चलती है, तो एंगल्स पॉजिटिव होते हैं। एंगल्स पॉजिटिव कब लेने हैं? व्हेन वी मूव जस्ट लाइक एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे हम लोग तो अपने पास नेगेटिव एंगल होते हैं। तो हमेशा जब भी आपने प्लीज नोट करना है, जब भी हम चलते हैं तो एंगल कहां से लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। ओके, सो कन्वर्जन पढ़नी है आज आपने, इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए जरा, अगर हम बात करते हैं यहां पे, ये वाली बात कर रहा हूं, तो ये एंगल सबको पता है कितना डिग्री का है? दिस इज 90 डिग्री। फर्स्ट ये 90 डिग्री का। अगर मैं यहां पे भी बात करता हूं तो ये कितना है? दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री। मैं थर्ड की बात कर रहा हूं, ये वाला, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री थर्ड। अगर इसकी बात करता हूं, दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर मान लेते हैं सपोज दैट द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ए, और ये इस तरह से कंप्लीट करके ए पे पहुंच गई, तो टोटल एंगल उसने कितना डिस्क्राइब किया? दैट इज 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90। तो ये दैट इज टोटल एंगल कितना हो गया? 360 डिग्री। ये तो आपने ऑलरेडी, आपको पता ही है कि दैट इज टोटल एंगल कितना हो गया? 360 डिग्री। एंगल इज 360 डिग्री यहां पे। ओके, अब बात करते हैं, हेडिंग है कन्वर्जन ऑफ डिग्री इंटू रेडियन और रेडियन इंटू डिग्री। डिग्री को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। ओके, तो थोड़ा सा चीज आपने नोट करनी है, यहां पे 360 डिग्री मैंने बोला, तो एक चीज नोट करिए पहले प्लीज, देखिए जरा ध्यान से सुनना है आपने। 1 डिग्री, ये जो ऊपर ये लगता है, ये आपको पता ही ऑलरेडी, आपने क्लास 9th 8th में किया होगा, दैट इज डिग्री सेल्सियस, और ये इतना किया आपने। सो सी, दिस इज 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ठीक है। अगर मेरे पास ये मैंने क्या लगाया ऊपर, इस तरह से लिखा है,
एक एक बार ऊपर लगाया ये वाला, दिस इज, मैंने ये क्या बोला, डिग्री का सिंबल है। अगर एक है तो ये मिनट्स का है, दिस इज मिनट्स। अगर ऐसे मैंने डबल लगाया यहाँ पे तो ये सेकंड्स का सिंबल है। This one is for degree, second one is for minute and the third one is for seconds। तो हमने क्या करना है, कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, उस चीज देखनी है आपने। तो देखिए जरा, अब मैं इसको थोड़ा छोटा सा बना रहा हूं क्योंकि हमने बोर्ड यूज करना है। ये मैंने आपको बता दिया 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। करेक्ट। बेटा जो चीज बताई ध्यान से सुनना, ये अगर एंगल, हम दैट इज एंगल की बात करते हैं रेडियन में, तो देखिए जरा, रेडियन में हम इसको क्या बोलते हैं, पाई बाई टू। पाई बाई टू दैट इज ऑल्सो 90, लेकिन बोलते क्या है, पाई बाई टू। ये भी कितना है, दिस इज ऑल्सो पाई बाई टू, ये भी कितना है, पाई बाई टू।